ملتان میں ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کی کارروائی، خانیوال میں بغیر ٹیکس ڈیوٹی ادا کیے غیر قانونی امپورٹڈ سگریٹس کا ٹرک برآمد، ٹرک سے 36 لاکھ سے زائد مالیت کی امپورٹڈ سگریٹس برآمد کر لیے گئے ہیں۔ سگریٹ اور ٹرک کو قبضے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں ملتان سے، جہاں پر ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کی کارروائی اور خانیوال میں بغیر ٹیکس ڈیوٹی ادا کیے غیر قانونی امپورٹڈ سگریٹس کا ٹرک برآمد کر لیا گیا۔ ٹرک سے 36 لاکھ سے زائد مالیت کی امپورٹڈ سگریٹس برآمد کر لی گئے، جبکہ سگریٹ اور ٹرک کو قبضہ میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب انجمن تاجران راوی کلاد مارکیٹ کے تاجران کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں ایس پی گلگشت ڈاکٹر رضا تنویر، ڈی ایس پی گلگشت امتیاز احمد اور ایس ایچ او نیو ملتان بھی شریک ہوئے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، انجمن تاجران چنگی نمبر 14 رابی کلات کپڑا مارکیٹ میں جو ہے وہ تاجران کی جانب سے جو ہے وہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں جو ہے وہ ایس پی گلگشت ڈاکٹر رضا تنویر اور اس کے ساتھ ڈی ایس پی نیو سرکل ملتان جو ہے امتیاز احمد اور ایس ایچ او حسنین عباس صاحب نے شرکت کی ہے۔ تاجران کی جانب سے ان کو جو ہے وہ مسائل بھی پیش کیے گئے۔ ایس پی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، تاجران کی جانب سے آپ کو مسائل بھی پیش کیے گئے اور آپ نے بھی ان کو احتیاطی کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر بھی جو بتائی ہیں، کیا کہیں گے؟ کہ جو حکومت پنجاب کی طرف سے ٹائم کمیونیکیٹ کیا گیا ہے اس کو عمل درآمد کروایا جائے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس پہ ہم اپنی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ طے کر لیں۔ دوسرا یہ کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، مارکیٹ کیونکہ کافی بڑی ہے اور کافی زیادہ یہاں پہ سیل پرچیز ہوتی ہے، تو کورونا کے ماسک کا استعمال جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تیسری بات تھی وہ سیکیورٹی آف پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ مارکیٹ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو امپروو کیا جائے۔ اس میں جو کرایہ داری ہے وہ پولیس کے پاس اندراج ہوا جائے، ملازمین جو ہیں ان کا اندراج ہوا جائے۔ اس کے علاوہ جو کیمراز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کا فنکشن مزید بہتر کی جائے تاکہ جو اوور آل مارکیٹ کی سیکیورٹی ہے وہ اچھی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ شیخ جاوید صاحب کا ہمارے بڑا کوآپریشن بھی ہے کہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ ادھر ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ حل ہو جائے تاکہ پولیس کے پاس معاملات نہ آئیں۔ چھوٹے تاجر تحفظات کا شکار ہوتے ہیں کہ جب بھی لاک ڈاؤن لگتا ہے تو پولیس کی جانب سے ان سے جو نازیبا رویہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس طرح ہم نے اپنی ٹیم کو بریف کیا پراپرلی کہ کوآپریٹ کریں سب کے ساتھ، اسپیشلی جو صدور ہے مارکیٹس کے ان کے ساتھ۔ کمی بیشی ظاہری بات ہے کسی کے پاس کسٹمر ہوتا ہے تو تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ مقصد ہمارا کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہے، وبا سے بچنے کا مقصد ہے، تو اس کو اب اسی طریقے سے امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں اور انہوں نے تاجران کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر بھی بتائیں کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا اور پولیس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں تاکہ بڑھتے کورونا کیسز کے بعد جو ہے وہ خود کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکے اور اپنے ارد گرد جو پولیس کے ساتھ باقاعدہ طور پر اتحاد کریں گے۔ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے معزز کلاسرا، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال کا اولڈ ایج ہوم عافیت سینٹر کا دورہ۔ صوبائی وزیر نے اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگوں سے ملاقات کی۔ انچارج اولڈ ایج ہوم کی صوبائی وزیر کو بریفنگ۔ سید یاور عباس بخاری نے اولڈ ایج ہوم میں بزرگوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ ایم پی اے سبین گل اور ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مزمل یار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال کا اولڈ ایج ہوم عافیت سینٹر کا دورہ۔ صوبائی وزیر نے اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگوں سے ملاقات کی۔ انچارج اولڈ ایج ہوم کی صوبائی وزیر کو بریفنگ۔ سید یاور عباس بخاری نے اولڈ ایج ہوم میں بزرگوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ ایم پی اے سبین گل اور ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مزمل یار بھی ہمراہ تھے۔ شہر اولیا میں لاک ڈاؤن، اردو بازار گلگشت کے تاجروں نے لاک ڈاؤن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ تاجروں نے دکانیں بند کرنے کا وقت شام 6 بجے کے بجائے رات 9 بجے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں لاک ڈاؤن سے کاروبار ٹھپ، تاجر ہو گئے پریشان۔ اردو بازار گلگشت کے تاجروں نے حکومت کے لاک ڈاؤن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ گزشتہ لاک ڈاؤن کے اثرات ابھی کاروبار سے ختم نہیں ہوئے۔ ہفتے میں 2 چھٹیاں ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ سکول کالجز بھی بند ہیں۔ اسٹیشنری کا کام بالکل ختم ہو گیا ہے۔ 1 سال ہو گیا لاک ڈاؤن کو، ابھی تاجروں کی کمر سیدھی نہیں ہوئی، پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام اب جو وزیر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو تو فرق نہیں ہے، لیکن غریب تاجر کو تو فرق ہے، جس کا روزگار ڈیلی کا ہے، وہ کس طرح پورا سال گزارا کرے، کس طرح گزارا کرے۔
ताजरों का कहना था कि दुकानें बंद करने का वक्त रात 9 बजे रखा जाए। हफ्ते और एतवार की छुट्टी को खत्म ना किया गया तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन ईडी नवाज के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। हफ्ते एतवार की छुट्टी। दूसरी जानिब मुल्तान में लॉकडाउन की वजह से ट्राईपॉड पर काम मुतासर होकर रह गया है। चेयरमैन मुल्तान ट्राईपॉड ख्वाजा मोहम्मद हुसैन का कहना है कि कोरोना की हालिया लहर और लॉकडाउन से हम बहुत परेशान हैं। ट्राईपॉड पर 50% काम कम हो गया है। अब सिर्फ 20 से 22 कंटेनर्स रोजाना आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। मुल्तान में लॉकडाउन की वजह से ड्राईपोर्ट पर काम मुतासिर हो गया। चेयरमैन मुल्तान ड्राईपोर्ट ख्वाजा मोहम्मद हुसैन के मुताबिक कोरोना की हालिया लहर और लॉकडाउन से हम बहुत परेशान हैं। ड्राईपोर्ट पर 50% काम मुतासिर हुआ है। ड्राईपोर्ट पर अब सिर्फ 20 से 22 कंटेनर्स आ रहे हैं। हमें ड्राईपोर्ट में जी अप्रॉक्सीमेटली कंटेनर्स हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने वो सारे काम रुक गए हैं। हमारे तकरीबन रोजाना के 50 कंटेनर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे जो पिछले 2 दिनों में कम होकर 20 से 22 के करीब हो गए हैं। ख्वाजा मोहम्मद हुसैन का कहना है कि मुल्तान में ज़राई अद्वियात और केमिकल्स बरामद करने का कारोबार होता है, जबकि कपड़ा और दीगर अशिया मुल्तान से बरामद की जाती हैं। मौजूदा सूरत हाल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम ठप हो चुका है। हमारा मुतालबा है कि दुकानें शाम 6 की बजाय 8 बजे तक बंद कराई जाएं। हम मुझे ही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि आप 6 बजे की बजाय 8 बजे तक का टाइम दें और थोड़ी सी चीजें और रिलैक्स करें, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी की वजह से लोग 5-6 बजे के बाद काम करना और मार्केट में आना शुरू करते हैं, तो 8 बजे तक का टाइम दें। उनका मजीद कहना था कि खुराक और दीगर अशिया दरामद न होने की वजह से महंगाई में इजाफा हो सकता है। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। अब रुख करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में सरकारी रास्ते की बंदिश पर चक 4 के रिहायशियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने घंटों MM रोड ब्लॉक रखा। इसी हवाले से अख्तर मिजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली चक 4 के रिहायशियों ने सरकारी रास्ते की बंदिश पर एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन भी शामिल रहीं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने घंटों मियांवाली मुल्तान रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा, जिसके बायस रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी रहीं। मुजाहिरीन का कहना था कि काबजीन ने महकमा रेवेन्यू से मिली भगत करके मेन रास्ते पर दीवार बना दी है। 50 साल थी गए पूरा असा गली लंघदी पई है, इन्हें हुण आके बंद कर छोड़ी। असा ये मेहनत करे कोई गली मिली वने, सारी कोई दुश्मनी को नहीं, बहरहाल लिहाजा ख्याल करे। हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है कि ये एक तो इनका इंतकाल चेक किया जाए, जांच पड़ताल की जाए कि ये इंतकाल क्यों गलत तरीके से हुआ। अगर हुआ भी सही तो कम से कम 4 चक के जो लोग थे उनके लिए गलियां रखी जाती हैं, जो मेन रोड के ऊपर चढ़ने के लिए। मेन गली भी इंतकाल कर दी गई महकमे की मिली भगत से, जो बहुत बड़ा कब्जा माफिया है, उसने ये गली भी बंद की है। 4 चक में नहरें भी उसने बंद की है, वहां से भी वो लोग बत्था ले रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 60 साल से रास्ता शाहराहे आम था। अचानक रातों रात काबजीन ने रास्ते के सामने दीवार खड़ी करके चक 4 के रिहायशियों को मुश्किलात में डाल दिया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया था कि DC और DPO मौका पर आकर मुज़ाकरात करें। हम कहाँ से गुजरे, क्योंकि हमें मेन रास्ता यही लगता है। ठीक है, अगर हम इधर से नहीं गुजरेंगे, गली नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। इस आके बंद कर दी थी, मेहरबानी की थी वने कि सानू ये रास्ता खोल के दे। दूसरी गल एक जनाज़ेगाह दा रास्ता है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला तारिक महमूद और DSP सर्कल पिपला तसव्वर ने मौका पर पहुंचकर मुजाहिरीन को रास्ता खुलवा देने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज मौखर कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। नाज़रीन, मुल्तान मैपको टास्क फोर्सेस का रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। टास्क फोर्सेस ने एक रोज में रीजन भर में 61 बिजली चोर पकड़ लिए। बिजली चोरों पर 1,30,000 यूनिट्स चोरी करने का इल्जाम है। बिजली चोरी को 19,64,000 का जुर्माना आयद मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि इस वक्त मुल्तान मैपको टास्क फोर्सेस का रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। टास्क फोर्सेस ने एक रोज में रीजन भर में 61 बिजली चोर पकड़ लिए। बिजली चोरों पर 1,30,000 यूनिट्स चोरी करने का इल्जाम है। बिजली चोरों को 19,64,000 का जुर्माना भी आयद किया गया और मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। और अब बात करेंगे मुल्तान की। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से स्कूल्स की मुरम्मत के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। खुसूसी बच्चों के 3 स्कूल्स के लिए फंड्स जारी किए गए। खुसूसी बच्चों के स्कूल्स के लिए 1,10,00,000 के फंड्स जारी किए गए। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम लड़कियों के लिए 50 लाख का फंड जारी। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम लड़कों के स्कूल के लिए 20 लाख के फंड्स जारी किए गए हैं। गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल जलालपुर वाला के लिए 40 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए हैं।
जमात इस्लामी 21 मार्च को मुल्तान में पार शो करेगी, जिसकी तैयारियों के लिए जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने मुल्तान में टिम्बर मार्केट का दौरा किया। डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना है कि 21 मार्च को हुकूमत की नाअहली पर रेफरेंडम होगा। इसी पर मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं जुनेद अनवर की रिपोर्ट। जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने टिम्बर मार्केट का दौरा किया। सदर टिम्बर मार्केट हाफिज सादिक हुसैन ने जिलाई अमीर का इस्तकबाल किया। इस मौका पर हाफिज सादिक हुसैन का कहना था कि जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार करते हैं। 21 मार्च को मुल्तान में तारीखी जलसा होगा। मुख्तलिफ अदवार भी देख चुके हैं। ये जमात एक साफ सुथरी जमात और नेक मकसद के लिए निकली है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी एक दफ़ा खिदमत का मौका दे, ये अवाम के लोगों के मामलात को समझें। हालात जो इस वक्त चल रहे हैं मुल्क में, बेरोजगारी है, महंगाई है, आए दिन कीमतों का रेट बढ़ रहा है। जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल का कहना था कि सिराजुल हक जलसा में ताजरों के मसाइल को भी उजागर करेंगे। 21 मार्च को हुकूमत की नाअहली पर रेफरेंडम होगा। इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ जमात इस्लामी में जलसे और जमात इस्लामी के अंदर शमूलियत का ऐलान भी किया है। हम इनको खैर मकदम भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्तान के अंदर हमारी टीमें इस वक्त इस अजीम शान पावर शो के लिए काविशें कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं और इंशाल्लाह 21 मार्च को एक बहुत अजीम शान जलसा-ए-आम होगा। इस मौके पर रहनुमा जमात इस्लामी राना फिजान, अब्दुर्रहमान राना, हसान अखवानी और डॉक्टर औरंगजेब समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। रहीम यार खान के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि माह अप्रैल के पहले हफ्ते में गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी। किसान गंदम की फसल को आखिरी पानी 25 मार्च से कबल दें। बारिशों या तेज हवाओं की सूरत में गंदम को पानी बिल्कुल न दिया जाए। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि गंदम की फसल पक कर कटाई के मरहले में पहुंचने वाली है। रवां साल गंदम की फी एकड़ पैदावार बेहतर हो रही है। 1 अप्रैल से जिले में पंजाब की आखिरी तहसील सादकाबाद से गंदम की कटाई का मरहला शुरू कर दिया जाएगा। किसान व मजदूर फसल की बरवक्त संभाल के लिए कटाई गिहाई से पहले ही मजदूरों, थ्रेशर, ट्रैक्टर ट्रॉली, तरपालों और प्लास्टिक की चादरों और कंबाइन हार्वेस्टर का इंतजाम कर लें। बारिश के दौरान गंदम की कटाई बंद कर दी जाएगी। गंदम की भरियां कदरे छोटी बांधी जाएं और सिट्टों का रुख एक तरफ किया जाए। जिम्मेदारों के लिए जो चंद चीजें हैं वो ये है कि गंदम की मुकम्मल जब खुश्क हो जाए, पक कर तैयार हो जाए तो उस वक्त कटाई करनी चाहिए। जब कटाई करनी है तो उसके लिए छोटे छोटे उसके जो है ना वो गट्ठे बनाने हैं और सिट्टों का रुख एक ही तरफ करना चाहिए। इसके अलावा जो वहाँ ढेरियां बनाते हैं तो ढेरियों के इर्द गिर्द जो है वो बारिश के पानी, अगर बारिश की सूरत में पानी जमा होता है तो उसके निकास का इंतजाम करना चाहिए। जरी माहिरीन का कहना था कि कटाई के बाद फसल की बाकियात को हरगिज ना जलाया जाए। रवां साल गंदम की फसल पीली कुंगी के हमले से पाक रही है, जिससे फी एकड़ पैदावार बेहतर होगी और चंद ही दिनों बाद गंदम की फसल पककर कटाई के मरले में पहुंच जाएगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल ने सनतजार का दौरा किया। सनतजार की अपग्रेड बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किया गया। डिवीजन भर के सोशल वेलफेयर अफसरान के इजलास से खिताब भी किया। सुहेरा तारी की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सैयद यावर अब्बास बुखारी ने मुल्तान दौरे के दूसरे रोज सनतजार की अपग्रेड बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। चेयरपर्सन सनतजार और MPA सबीन गुल भी हमरा थीं। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार और मैनेजर सनतजार अहमद चिश्ती ने सूबाई वजीर को इदारे का दौरा करवाया। खवातीन को कैसे अलग रखा जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, जो मेल स्टाफ हैं वो एक साइड पे बैठ के काम करें, उनकी तफरी के लिए फिर एक जो स्टाफ रूम है, आप मैंने सारे जाके देखे, ऊपर जो हॉल्स हैं, जिस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा सनज़ार तो अभी तक पंजाब में मैंने नहीं देखे। सूबाई वजीर का कहना था कि हुकूमत खवातीन की तरक्की के लिए काम कर रही है। समाजी बहबूद के इदारों में माहौल बेहतर दिया गया है तो अफसरान भी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। सनज़ार वो पुराना सनज़ार नहीं होगा। यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो नई नई चीजें सीखेंगी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और यहाँ पे इससे पहले ऐसा नहीं होगा कि न्यू टेक्नोलॉजी की चीजें यहाँ पे आई हैं। सूबाई वजीर ने डिवीजन भर के सोशल वेलफेयर अफसरान के इजलास के दौरान महकमाना जिम्मेदारियाँ, दयानतदारी और फर्शनासी से अंजाम देने की हिदायत की। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए रोही, क्योंकि हम करते हैं आपकी सब बातें।